Okay, students, just let me know in the comment section that whether you can hear me properly or not, or the screen is visible or not. Just join as soon as possible and let me know in the comment section whether the screen is visible or not, and is my voice audible to you? Batao. And after that, we will start today's class. Okay, so in today's lecture, we're going to be doing the specific heat in quantum mechanics, like the quantum theory of specific heat, where we're going to discuss about the Einstein contribution. So let's talk about that. In today's class, we're going to be talking about specific heat. कल हम लोगों ने किया था क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट. आज शुरू कर रहे हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट. बेसिकली क्वांटम थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक का दो तरीका है, एक तो बोसोनिक कंट्रीब्यूशन और एक है फर्मियोनिक कंट्रीब्यूशन. एक होता है बोसोनिक कंट्रीब्यूशन एक होता है फर्मियोनिक कंट्रीब्यूशन. Bosonic contribution can again be divided into two parts. One is optical phonon, that is Einstein theory, and this is called, there is another thing called optical phonon and acoustic phonon, that is Debye's theory. Now let me tell you this, आज हम लोग जो चीज करने वाले हैं वो है क्वांटम थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक, दैट्स फाइन, बट आज हम लोग बोसोनिक कंट्रीब्यूशन में आइंस्टाइन थ्योरी पढ़ने वाले हैं. फिर देखेंगे कि आइंस्टाइन थ्योरी में क्या क्या गलतियां हैं. फिर उसके बाद हम लोग एक्वस्टिक फोनॉन पढ़ने चलेंगे, जो डिवाइस थ्योरी. ये चीज हम लोग एक्चुअली 1D में पढ़ेंगे, 2D में पढ़ेंगे, 3D में पढ़ेंगे. ठीक है, लेट्स से 1D 2D 3D, क्योंकि वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो शुरू करा जाता है आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ लैटिस स्पेसिफिक हीट और लैटिक हीट कैपेसिटी. देखो, आइंस्टाइन थ्योरी पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत आइंस्टाइन के कुछ अजम्पशंस हैं कि जो अजम्पशंस के ऊपर ये थ्योरी बेस्ड है, वो अजम्पशंस पहले हमें जानना चाहिए. वो अजम्पशंस क्या क्या है? उन अजम्पशंस में सबसे पहले जिसके बारे में जिक्र किया गया है, that thing is a crystal consists of atoms which may be regarded as identical and independent harmonic oscillator. A crystal consists of, जो हमारा क्लासिकल थ्योरी का भी assumption था, consists of, बट दिक्कत ये था कि वहां पे हम लोगों ने उसको क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर लिया था, यहाँ पे हम इसको क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर लेंगे. तो a crystal consists of atoms which
may be regarded as identical and independent harmonic oscillator, LHO, linear harmonic oscillator. Second thing, this was also an assumption for classical theory, that a solid consisting of n atoms, a solid consisting of n atoms is equivalent to 3 and 1D harmonic oscillator. Atoms is LHO in 3D. A solid consisting of n atoms is equivalent to 3n 1D LHO. This was also an assumption for the classical theory. अगर तुम्हें याद हो तो कल ही हम लोगों ने ये चीज बताया है कि डेफिनेटली एक हार्मोनिक ऑसिलेटर जो 3D में है, जो एक 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर है, उसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 होते हैं. जस्ट बिकॉज कि एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ दूसरे कोई इंटरेक्शन नहीं है, एक्स कोऑर्डिनेट के साथ वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट का कोई इंटरेक्शन नहीं है, वी कैन से दैट one harmonic oscillator in 3D is actually 3 harmonic oscillators in 1D. So n harmonic oscillators in 3D, that is 3n number of harmonic oscillators in 1D, वही चीज यहाँ पे बोला गया. उसके बाद all LHO vibrate with same natural frequency due to identical environment. Natural frequency due to identical environment. After that, number 4, we can say the oscillators are quantum oscillators and have discrete energy spectrum rather than continuous one as for classical oscillators. The oscillators, this one is very, very important. This is the first quantum assumption. The oscillators are quantum oscillators and have discrete energy levels and have discrete energy spectrum and have discrete energy spectrum rather than continuous one as for classical oscillators. Continuous one as for classical harmonic oscillators. क्लासिकल LHO. हम लोगों ने कल देखा था कि एक क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर का एनर्जी 0 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, बट इन केस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर एनर्जी 0 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी नहीं हो सकता. एनर्जी होगा n+12 h कट ओमेगा. क्वांटम मैकेनिक्स से हमारे पास आता है कि क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी ये होता है, तो डेफिनेटली इट्स अ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, क्योंकि n का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डॉट डॉट डॉट. सो डेफिनेटली इट्स अ क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर. क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर में एनर्जी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कंटीन्यूअस रेंज फ्रॉम 0 to infinity, बट इन केस ऑफ क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर इट हैज टू बी डिस्क्रीट एंड एज यू कैन सी द n का वैल्यू कैन बी फ्रॉम 0 1 2 3 लाइक. ठीक है. आफ्टर दैट यू कैन से the number of oscillators may be present in the same quantum state. Any number of oscillators may be present in the same quantum state. And the atomic oscillators form an assembly of systems which are distinguishable or indefinable due to their location at separate and distinct lattice sites, and hence they obey MB statistics. तो why MB statistics? Last one is very important. जो oscillators हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेगा. ये इसकी बात होगी.
So the atomic oscillators form an assembly of systems. The atomic oscillators form an assembly of systems which are distinguishable due to their location at their location at due to their location at separate and distinct lattice sites. Separate and distinct lattice sites. Separate and distinct lattice sites, and hence they obey MD statistics. And hence they obey MV statistics, Maxwell-Boltzmann statistics. And hence they obey the MD statistics. तो ये सारे assumption यहाँ पे है. पहले जो तीन assumptions हैं, तो वो तीन assumptions हमारे classical जो harmonic oscillators थे उनके assumption के साथ बिल्कुल same है. After that जो assumption number 4 है, that is very important कि जो यहाँ पे energies है वो discrete है, because these are quantum energies, not as the same as the classical harmonic oscillator energies. Number 5, which says that जो atoms हमारे यहाँ पे vibrate कर रहे हैं, those are distinguishable atoms, and just because they are distinguishable, they will follow the Young statistics. Now we know this, so let me tell you about the Hamiltonian now. So Hamiltonian of the nth atom, or like Hamiltonian of suppose a particle, like for 1D LHO, Hamiltonian can be written as n plus half h cut omega, जहाँ पे n can be equals to 1, 2, 3, 4 dot 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 infinity. So all I'm trying to say is n is starting from 0, then n can be 1, then n can be 2, then n can be 3. So these are discrete values. You can see that. And the particle can be in any of the quantum states. So this is a single particle quantum state. N equals to 0 defines a quantum state. N equals to 1 defines a quantum state. N equals to 2 defines a quantum state. N equals to 3 defines a quantum state. Why I am writing the states like this? मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो एक एनर्जी लेवल है, कि अगर एक पार्टिकल यहाँ पे रहेगा तो इसका एनर्जी होगा n प्लस हाफ h कट ओमेगा, ये एनर्जी होगा 0 प्लस हाफ h कट ओमेगा h कट ओमेगा by 2. जो पार्टिकल यहाँ पे रहेगा उसका एनर्जी होगा 1 प्लस हाफ h कट ओमेगा, मतलब 3h कट ओमेगा by 2. जो पार्टिकल यहाँ पे रहेगा उसका होगा 5h कट ओमेगा by 2. जो पार्टिकल यहाँ पे रहेगा उसका होगा 7h कट ओमेगा by 2. तो डेफिनेटली एनर्जी बढ़ रहा है, तो इसलिए इसके ऊपर इसको बनाया, फिर इसके ऊपर इसको बनाया, फिर इसके ऊपर इसको बनाया, लाइक दिस. चलो, तुम अगर इतना कुछ समझ गए हो, अगर तुमने इतना कुछ समझ लिया, तो आई थिंक तुम अब परफेक्ट पोजीशन पे हो कि तुम शुरू कर दो एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी निकाल. सर बहुत आसान सी चीज है, समेशन ऑफ summation of n equals to 0 to infinity En, nth state का energy, e to the power of negative of beta into En divided by summation n equals to 0 to infinity e to the power of negative of beta into En. That's all I can say. That's all I can say. अच्छा, इस एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई? इसको लिख सकते हैं summation of n equals to 0 to infinity n plus half h cut omega e to the power of negative of beta into n plus half h cut omega whole divided by summation n equals to 0 to infinity e to the power of negative of beta into n plus half
h cut omega. We can say this. Now you can take a look that यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल में n प्लस हाफ h cut omega वाला टर्म है, we can do one thing, h cut omega को कॉमन ले लो. ओमेगा इज बेसिकली द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन. ठीक है, ओमेगा को अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n प्लस हाफ e टू द पावर ऑफ n प्लस हाफ h cut omega into बीटा. ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, बीटा h कट ओमेगा को x मानते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, h कट ओमेगा को पहले बाहर लो, समेशन ओवर n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी n प्लस हाफ e टू द पावर ऑफ नेगेटिव ऑफ बीटा n प्लस, हैंग ऑन, बीटा h कट ओमेगा को हमने x लिया है तो n प्लस हाफ इंटू x. नीचे आ जाएगा समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर ऑफ नेगेटिव ऑफ, rather we can do one thing, माइनस बीटा h कट ओमेगा को x ले लो तो ये तुम्हारा प्लस हो जाएगा, तो e टू द पावर ऑफ नेगेटिव ऑफ बीटा h कट ओमेगा है तो n प्लस हाफ इंटू x, n प्लस हाफ इंटू x. we can say this. अब अगर ये सिनेरियो है, इसको नेक्स्ट पेज में हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, माइनस बीटा h कट ओमेगा को हम लोगों ने x ले लिया है. अब मुझे एक बात बताओ कि इसको और कैसे वो कर सकते हैं. इसको अगर लिखेंगे तो h कट ओमेगा बाहर रखो नेक्स्ट पेज में, और फिर यहाँ पे शुरू हो जाओ समेशन करना. तो पहला टर्म आएगा 0 मतलब हाफ, यहाँ पे आ जाएगा e टू द पावर ऑफ x by 2, फिर 1 लिखो मतलब 3 by 2, यहाँ पे 1 लिखोगे तो 3 by 2 into x, तो हाफ e to the power of x by 2 plus 3 by 2 e to the power of x by 2 plus 5 by 2 e to the power of x by 2, 5x by 2 actually, this is 3x by 2, this is 5x by 2 plus dot. नीचे तुम्हारा आएगा ये चीज, that is half, there is no half actually, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ e to the power of n plus हाफ इंटू x है, तो n का वैल्यू 0 लूंगा तो e to the power of x by 2 plus e to the power of 3x by 2 like this, e to the power of x by 2 plus e to the power of 3x by 2 plus e to the power of 5x by 2 plus dot this things ऐसे आ जाएंगे. भाई मुझे एक बात बता कि यहाँ से हम लोग अगर चाहे इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, h कट ओमेगा into ddx of ln of e to the power of x by 2 plus e to the power of 3x by 2 plus e to the power of 5x by 2 plus dot. जी हाँ से लिख सकते हैं. इसका डिफरेंशिएशन करो 1 by this thing, इसका डिफरेंशिएशन आएगा हाफ into the power of x by 2, फिर 3 by 2 into the power of 3x by 2, फिर 5 by 2 into the power of 5x by 2 like this. तो इसको ऐसे लिखना पॉसिबल. अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं h कट ओमेगा ddx of ln of e to the power of x by 2 कॉमन ले लो, e to the power of x by 2 को जैसे कॉमन लोगे तुम्हारे पास आ जाएगा 1 प्लस e to the power of x plus e to the power of 2x plus e to the power of 3x plus dot. Right? Now we know that this thing is actually negative of ln of 1 minus e to the power of x. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे h कट ओमेगा ddx ln of e to the power of x by 2. ठीक है, और ये जो चीज है ln of this, अच्छा ln of a b मतलब क्या होता है, ln of a into ln of b, तो ln of e to the power of x by 2 plus ln of this thing 1 plus e to the power of x plus e to the power of 2x plus dot. अच्छा ln of 1 plus e to the power of x plus e to the power of 2x plus dot जो होता है that is negative of, यहाँ पे h कट ओमेगा लिखता हूँ, ddx लिखता हूँ, फिर क्या लिखूंगा ब्रैकेट देके, अच्छा ln of e to the power of x by 2 मतलब x by 2, और ये जो चीज है सर इसका मतलब है नेगेटिव ln of 1 minus e to the power of x, negative
ln of 1 minus e to the power of h। वेरी गुड। ये क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट कर दो h कट ओमेगा, पहला वाला आएगा हाफ, दूसरा वाला आएगा नेगेटिव ऑफ 1 बाई e टू द 1 माइनस e टू द पावर ऑफ x, देन इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो e टू द पावर ऑफ x आएगा, e टू द पावर ऑफ x आ जाएगा। तो फाइनली जो ये आंसर आ रहा है दैट इज e टू द पावर ऑफ x को नीचे ले लो तो आ जाएगा h कट ओमेगा बाई 2 माइनस h कट ओमेगा डिवाइडेड बाई e to the power of minus x minus 1। x का वैल्यू क्या था भाई, बीटा h कट नेगेटिव ऑफ बीटा h कट ओमेगा, x का वैल्यू जैसे ही हम पुट करोगे तो तुम्हारा आ जाए h कट ओमेगा बाई 2 माइनस h कट ओमेगा e to the power of बीटा h कट ओमेगा minus 1। दिस इज द थिंग व्हाट यू विल गेट। तो बेसिकली ये हमारा क्या है, एवरेज एनर्जी का एक्सप्रेशन। अब दिस टर्म इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट जीरो पॉइंट एनर्जी कंट्रीब्यूशन टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर। तो दिस इज बेसिकली मैं इंटरनल एनर्जी अगर देखना चाहता हूं तो दिस इज माय इंटरनल एनर्जी। सो अगर इंटरनल एनर्जी का बात हो रहा है तो ये है तुम्हारा h कट ओमेगा बाई 2 माइनस h कट ओमेगा e टू द पावर ऑफ बीटा h कट ओमेगा माइनस 1। I can write it like this। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम 0 केल्विन टेम्परेचर की बात कर रहे हो, जब तुम्हारा T इक्वल टू 0 हो जाएगा तब बीटा तुम्हारा हो जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि बीटा इज 1 बाई केबीटी। बीटा इन्फिनिटी हो जाएगा तो e टू द पावर ऑफ इन्फिनिटी दैट इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस 1 इज इन्फिनिटी, तो 1 बाई इन्फिनिटी 0, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, सिर्फ ये वाला टर्म रह जाएगा। सो एट T equal to 0, average value of U is equals to h cut omega by 2। It means the atoms are not at rest। Atoms are not at rest। इसका मतलब इवन एट 0 केल्विन टेम्परेचर पे भी एटम रेस्ट पे नहीं आ रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल के अंदर 0 नहीं हो सकता। तो T इक्वल टू 0 तो बीटा इन्फिनिटी, यहाँ पे बीटा इन्फिनिटी पुट करके देखो, डिनोमिनेटर इन्फिनिटी हो जा रहा है तो 1 बाई इन्फिनिटी इज 0। तो दिस थिंग इज देयर। अब अगर इनसे पूछा जाए, ये है एक्सप्रेशन ऑफ अ सिंगल एनर्जी ऑफ अ सिंगल हार्मोनिक ऑसिलेटर। देयरफॉर फॉर 3n 1d LHO टोटल एनर्जी कितना होगा, टोटल एनर्जी बोलना भूल होगा, टोटल इंटरनल एनर्जी कितना होगा सर जी, ये हो जाएगा आपका 3n मल्टीप्लाइड बाई एवरेज वैल्यू ऑफ अ सिंगल हार्मोनिक ऑसिलेटर, दैट इज 3n into h cut omega by 2 अच्छा, यहाँ पे जब इसका डिफरेंशिएशन करा तो यहाँ पे ऊपर में एक माइनस साइन आएगा जिससे ये प्लस हो जाएगा, ये वाला प्लस होगा, नहीं एक सेकंड, ये वाला प्लस होगा, प्लस होगा, दिस थिंग विल बी पॉजिटिव, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये वाला प्लस हो जाएगा, माइनस साइन ऊपर आएगा तो माइनस माइनस प्लस। गुड, तो यहाँ पे तुम्हारा प्लस होगा h कट ओमेगा e टू द पावर ऑफ बीटा h कट ओमेगा माइनस 1, दैट्स ऑल, जिसको मैं लिख सकता हूँ 3n h कट ओमेगा बाई 2 प्लस 3n h कट ओमेगा बाई e टू द पावर ऑफ बीटा h कट ओमेगा माइनस 1, ये बता सकते हैं। जैसे ही तुम्हारा इंटरनल एनर्जी आ गया, टोटल इंटरनल एनर्जी आ गया, तो डेफिनेटली तुम अभी सीवी निकाल सकते हो, सीवी निकालने में कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। तो बेटा सीवी क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर दो इसको टेम्परेचर के रिस्पेक्ट पे। जैसे ही डिफरेंशिएट करूंगा दैट पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू t एट कांस्टेंट v, तो ये तुम्हारा पहला वाला टर्म चला जाएगा, दूसरे वाले टर्म जो है 3n h कट ओमेगा, तो 3n h कट ओमेगा ही रहेगा, इस टर्म पे डिफरेंशिएशन हो तो तुम्हारा नीचे आ जाएगा e टू द पावर ऑफ बीटा h कट ओमेगा माइनस 1 का स्क्वायर
अच्छा 3n h ओमेगा, ऊपर में क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, तो e टू द पावर ऑफ बीटा h ओमेगा, और फिर बीटा h ओमेगा का डिफरेंशिएशन आएगा, बीटा मतलब 1 बाई के बी टी, तो नेगेटिव ऑफ 1 बाई के बी टी स्क्वायर h ओमेगा, h ओमेगा जी आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट सी वी इज इक्वल्स टू 3n के बी, एक के बी मल्टीप्लाई करो यहाँ पे ऊपर और नीचे, तो देखना ये नीचे के बी है तो के बी स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 3n के बी लिख दिया, एच कट ओमेगा इसके साथ मल्टीप्लाई करके एच कट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के बी स्क्वायर टी स्क्वायर, तो एच कट ओमेगा के बी टी स्क्वायर, के बी टी का होल स्क्वायर, यहाँ पे टी स्क्वायर है, के बी आ गया, ठीक है। ये सिनेरियो खत्म, इसके बाद और क्या है, e टू द पावर ऑफ बीटा एच कट ओमेगा डिवाइडेड बाय दिस थिंग। अच्छा और कुछ, सर जी यहाँ पे एक दिक्कत है शायद, वो ये है कि इस चीज का हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो दिस टू द पावर ऑफ माइनस पहले एक माइनस वन आएगा 3 रेज कट ओमेगा, फिर माइनस माइनस वन मतलब इसका स्क्वायर, फिर इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो ये आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आपका ये चीज ये होगा दिस थिंग, देन आई कैन राइट e टू द पावर ऑफ बीटा एच कट ओमेगा डिवाइडेड बाय e टू द पावर ऑफ बीटा एच कट ओमेगा माइनस वन का होल स्क्वायर, दैट्स ऑल, डन, ठीक है। हम लोग ये बता सकते हैं यहाँ पे, अब ये तुम्हारा सीबी है, सीबी के दो बिहेवियर हम लोग देखना चाहते हैं, एक है हाई टेम्परेचर बिहेवियर, एक है लो टेम्परेचर बिहेवियर एट हाई टी, एट हाई टेम्परेचर कैसा होगा इसका बिहेवियर सर एट हाई टेम्परेचर, देखो जब टेम्परेचर बहुत हाई है देन बीटा एच कट ओमेगा, बीटा एच कट ओमेगा जहां पे बीटा इज 1 बाई के बी टी, जो है तुम्हारा एच कट ओमेगा बाई के बी टी, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बड़ा है तो this thing will be very very much smaller than 1, that means h कट ओमेगा बहुत छोटा होगा kbt से, kbt से, ठीक है। तो यहाँ पे जो तुम्हारे पास है e टू द पावर ऑफ बीटा h कट ओमेगा माइनस वन, दिस थिंग इज वेरी वेरी मच स्मॉलर देन वन, ठीक है। अगर तो ये चीज तुम्हारा क्या हो जाएगा, फिर e टू द पावर ऑफ बीटा h कट ओमेगा माइनस वन को अप्रोक्सीमेटली लिखा जा सकता है वन प्लस बीटा h कट ओमेगा प्लस डॉट 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 दिस होल थिंग माइनस लास्ट में ये वन, तो क्या आ जाएगा बीटा एच का टर्म में आ जाएगा सर, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं बीटा एच का, तो इसका स्क्वायर कर दो यहाँ पे, तो बीटा एच का टर्म का स्क्वायर, और यहाँ पे तुम्हारा जो भी है उसको लिख दो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि तुम्हारा टोटल एनर्जी कितना है, e टू द पावर ऑफ बीटा एच का टर्म लिख सकते हैं बीटा एच का टर्म माइनस वन, उसके बाद इंटीग्रेशन करो जो करना है, उसके बाद इंटीग्रेशन करो जो करना है, तो एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी क्या आएगा यहाँ पे देखो, तो अगर ये हम अजम्पशन लगाते हैं भाई, तो एक सिंगल पार्टिकल का एवरेज एनर्जी क्या आ रहा था, एच कट ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 प्लस एच कट ओमेगा डिवाइडेड बाय e टू द पावर ऑफ बीटा एच कट ओमेगा माइनस वन, भाई यहाँ पे लिख सकते हो एच कट ओमेगा बाय 2 प्लस एच कट ओमेगा e टू द पावर ऑफ बीटा एच कट ओमेगा माइनस वन को हमने क्या लिखा है सिर्फ बीटा एच कट ओमेगा, तो यहाँ पे देखिए एच कट ओमेगा कैंसिल, वन बाई बीटा, वन बाई बीटा मतलब एच कट ओमेगा बाई टू प्लस के बी टी, वेरी गुड।
ठीक है, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो दिस थिंग इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू केवीटी। भाई देख, कल के अगर तेरा रिजल्ट याद हो तो कल के रिजल्ट में हमारा सीवी केवीटी आया था, ठीक है, बट एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया था कि सीवी का वैल्यू हमेशा केवीटी नहीं होता है, सीवी का वैल्यू ऐसे जाके ऐसे जाता है, हाई टेम्परेचर में जाके सीवी का वैल्यू केवीटी होता है। तो डेफिनेटली आइंस्टाइन का जो थ्योरी है वो हाई टेम्परेचर में केवीटी को मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सेम एज द क्लासिकल रिजल्ट। बट लो टेम्परेचर में कैसा होगा जरा देखते हैं, लो टेम्परेचर में कैसा होगा जरा देखते हैं। हाई टेम्परेचर में क्लासिकल रिजल्ट से जो वैल्यू आया है उस रिजल्ट को मैच करना है। क्लासिकल रिजल्ट में बोला गया था कि हमेशा सीवी का वैल्यू केवीटी आए, बट वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो डेफिनेटली अगर ये तुम्हारा एवरेज एनर्जी ऑफ सिंगल पार्टिकल है तो एवरेज एनर्जी, टोटल एवरेज एनर्जी क्या हो जाएगा, 3n kBT, और तुम्हारा CV आ जाएगा, फिर तुम्हारा CV क्या आ जाएगा, 3n kB। सेम वैल्यू तुम्हारा आया था क्लासिकल रिजल्ट के लिए भी, बट सर ये वैल्यू हमेशा नहीं लिया जा सकता क्योंकि क्लासिकल रिजल्ट का वैल्यू हमेशा आपका कांस्टेंट है, बट एक्चुअली में CV दिखने में ऐसा है। तो सर लो टेम्परेचर में ये दिखने में ऐसा है, हाई टेम्परेचर में जाके कांस्टेंट हो जाता है। तो एटलीस्ट आइंस्टाइन साहब ने जो थ्योरी दिया था वो हाई टेम्परेचर में जाके इस ग्राफ के वैल्यू को मैच करा रहा है, बट लो टेम्परेचर में मैच कराता है क्या, लो टेम्परेचर में कर्व ऐसे होने चाहिए। तो देखते हैं लो टेम्परेचर में वैल्यू क्या आता है, देख लेते हैं लो टेम्परेचर वैल्यू क्या आता है। So we can say at low temperature, at low temperature की अगर बात हो रहा है, so in that case we can write kBT by h का ओमेगा, मतलब बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं जो बीटा h का ओमेगा होता है तुम्हारा, बीटा h का ओमेगा जो है तुम्हारा kBT by h का ओमेगा, टेम्परेचर सॉरी बीटा मतलब 1 by kBT, तो h का ओमेगा by kBT। सर टेम्परेचर बहुत छोटा है तो ये चीज बहुत बड़ा है, तो दिस थिंग इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन 1, दैट मींस h का ओमेगा इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन kBT। इसका मतलब हुआ e to the power of बीटा h का ओमेगा, this thing is very very much greater than 1, minus 1 is approximately equals to e to the power of बीटा h का ओमेगा, ये सिनेरियो है। तो व्हाट इज एवरेज वैल्यू ऑफ u, सर h का ओमेगा बाय 2 फॉर अ सिंगल पार्टिकल, h का ओमेगा बाय 2 प्लस h का ओमेगा डिवाइडेड बाय e टू द पावर ऑफ बीटा h ओमेगा माइनस 1, दैट इज e टू द पावर ऑफ बीटा h का ओमेगा, ये सिनेरियो है। तो फॉर n पार्टिकल 3n से मल्टीप्लाई कर दो, एवरेज वैल्यू फॉर n पार्टिकल टोटल एवरेज एनर्जी इज इक्वल्स टू 3n h का ओमेगा बाय 2 प्लस 3n h का ओमेगा डिवाइडेड बाय टू द पावर ऑफ बीटा h का ओमेगा। और यहां से अगर हम लोग इस चीज का डिफरेंशिएशन करें तो CV का वैल्यू हमारा आ जाएगा, इसका तो डिफरेंशिएशन 0 विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, इसका आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 3n h कट ओमेगा, नीचे e टू द पावर ऑफ बीटा h कट ओमेगा का स्क्वायर, और ऊपर में e टू द पावर ऑफ बीटा h कट ओमेगा रहेगा मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव ऑफ h कट ओमेगा बाय kBT स्क्वायर, ये रहेगा चीज। तो ऊपर नीचे केबी केबी मल्टीप्लाई करो तो माइनस 3n kb h कट ओमेगा बाई kBT का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा e टू द पावर ऑफ बीटा h में से काट दूंगा तो e टू द पावर ऑफ बीटा h कट ओमेगा। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ तुम्हारे एक्चुअल थियोरेटिकल ग्राफ के साथ मैच नहीं करता। दिस इज द थियोरेटिकल, दिस इज द एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल ग्राफ जो थोड़ा बहुत ऐसा होता है, इसके साथ ये ग्राफ मैच नहीं कर रहा। तो आइंस्टाइन थ्योरी सही है, अच्छा है फॉर हाई टेम्परेचर, क्योंकि हाई टेम्परेचर में जो एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है उसको मैच कराता है।
जो क्लासिकल थ्योरी से भी मैच हो रहा था, लो टेम्परेचर में मैच नहीं हो रहा सर। अब हालांकि एक बात अच्छा है कि क्लासिकल थ्योरी में प्रूफ किया गया था कि हर टाइम सीवी कांस्टेंट रहेगा, जो एक्चुअली में नहीं है। आइंस्टाइन थ्योरी में ये इंप्रूवमेंट हुआ कि आइंस्टाइन बोल रहे कि नहीं 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 नहीं, सीवी कांस्टेंट नहीं रहेगा, वेरी कर रहा है, बट वेरी कुछ अलग तरीके से करेगा। लो टेम्परेचर में ऐसे वेरी करेगा, हाई टेम्परेचर में जाके कांस्टेंट होगा। बट जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल कर्व है उसमें देखा जा रहा है कि हाई टेम्परेचर में जाके 3R हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बट लो टेम्परेचर में आइंस्टाइन का दिया गया जो वैल्यू है इसके साथ मैच नहीं हो रहा है, तो यहां पे दिक्कतें आ रही। दैट्स व्हाई आइंस्टाइन का मॉडल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कुछ और मॉडल के बारे में सोचना होगा, जो है तुम्हारा डिबाई थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट। इसके बारे में हम लोग कब बात करेंगे, ऑन द नेक्स्ट क्लास। फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच। और if you want the lecture PDF of these lectures, then you can definitely go to my Telegram channel, which is Sourav Sir Testbook. Go to my Telegram channel and write down Sourav Sir Testbook and join the channel. You can get all the links of YouTube lectures and all the lecture PDFs. उसके अलावा मैं थोड़ा सा बता दूं, जो बच्चे टेस्ट बुक के कोर्सेज परचेस करने के लिए सोच रहे हैं, फॉर देम इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल। यू कैन go to Google Chrome and write CSIR नेट सुपर कोचिंग। जो सबसे पहला हाइपरलिंक आएगा उसमें क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद जैसे ये खुल जाएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर जाना। ऊपर जाने के बाद तुम्हें यहाँ पे दिखेगा मेरा और राधिका नाम मैम के फोटो के साथ CSIR नेट सेट JRF अचीवर्स बैच फिजिकल साइंस जून 2024, इसमें क्लिक करना। थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, इसमें क्लिक कर देना। देखना कोर्सेज का एक्चुअल प्राइस 39,999 है, बट इफ यू यूज द प्रोमो कोड विच इज माय नेम SOURAV, then you can get that course at a price of 21,249। जैसे तुम यहाँ पे प्रोसेस पेमेंट करोगे वो प्रोमो कोड का ऑप्शन आ जाएगा। बाकी अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड हम लोग कल फिर से मिलते हैं। कल हम लोग क्या करेंगे, क्वांटम थ्योरी ही पढ़ेंगे, बट क्वांटम थ्योरी गिवन बाय डी बाय। तो कल हम लोग पढ़ेंगे, कल और परसों, दैट इज क्वांटम थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट। अब क्वांटम थ्योरी में मैंने बताया था कि दो इसमें डिवाइड होते हैं, तो बोसोनिक थ्योरी, फर्मियनिक थ्योरी। बोसोनिक थ्योरी में तुम्हारा बेसिकली दो नहीं तीन, बोसोनिक, फर्मियनिक, एमबी। तो आइंस्टाइन वाला है एमबी स्टैटिस्टिक्स फॉलो करने वाला, बोसोनिक वाला तुम्हारा वो है क्या कहते हैं उसे, लाइक डी बाय, एंड फर्मियनिक वाला तो बाद में जब इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट आएगा वो वाला। ठीक है, सो टुमारो वी विल स्टार्ट द डी बाय थ्योरी। तब तक के लिए अलविदा, एंड डू like, share and subscribe this channel, okay, and don't forget to like the video। thank you very much। चलो कल मिलते हैं।